A prominent Samajwadi Party member, Virendra Singh Pal, has been booked for raping a woman lawyer who used to assist him in Mau in Uttar Pradesh. The 18-year-old victim, in her complaint to the police, has alleged that he raped her and sexually exploited her for a year. She also claimed that he filmed the assault and threatened to leak her photos and videos on social media. An FIR has been filed and the Samajwadi Party Neta has gone absconding. Police teams have been formed to trace and arrest him. उनके विरुद्ध अवैध संबंध बनाने, मारपीट करने इत्यादि संबंधित एक तहरीर दी गई थी, जिस पर थाना कोतवाली पर मुकदमा अपराध संख्या 291/24 दिनांक 7/9/24 को दर्ज कर लिया गया है। उनके प्रार्थना पत्र के अनुसार उक्त व्यक्ति ने उनके साथ 6 तारीख को अपने चैम्बर के पास जाकर गाली गलौच और मारपीट किया गया तथा पिछले किसी भी तथ्यों के उजागर न करने देने संबंधी धमकी भी दी गई थी। लिहाजा पीड़िता द्वारा जब थाने पर आकर इसके संबंध में तहरीर दी गई तो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बेटियों की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करने वाली समाजवादी पार्टी एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। अयोध्या और कन्नौज के बाद अब पूर्वांचल के मऊ जिले में एक समाजवादी पार्टी के नेता के ऊपर रेप जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। प्रदेश के पूर्व सचिव और मऊ सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र बहादुर पाल के ऊपर उनकी ही एक सहयोगी महिला ने रेप और मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस महिला का आरोप है कि वीरेंद्र बहादुर पाल पिछले 1 साल से उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दे रहे थे। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट होती थी। बाकायदे उसने वीडियो भी बना लिया था और यही कारण है कि महिला ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद आरोपी वीरेंद्र बहादुर पाल के ऊपर रेप के संगीन आरोप लगे हैं और इसके साथ ही केस दर्ज कर लिया है। बड़ी बात यह है कि आरोपों का जवाब देने के बजाय वीरेंद्र बहादुर पाल अब फरार हो चुके हैं और पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच करते हुए उनकी तलाश में जुट गई है। तो सवाल यही है कि जिस तरीके से एक के बाद एक नेता समाजवादी पार्टी के रेप जैसे जो गंभीर आरोप है उससे गिरते जा रहे हैं, इन सभी मामलों पर जो समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं वो जवाब देने के बजाय कहीं ना कहीं सरकार को ही घेरते नजर आते हैं। Well, let's now break down the details of the victim's FIR. This, in fact, is a grab of the FIR copy, and the highlighted portion is where the victim has narrated the horror. Here, we are breaking down the details of what the victim told the police, based on which the case is being investigated. Here, she says, he kept sexually exploiting me. Apart from that, the victim has also alleged that this individual associated with the Samajwadi Party drugged her and raped her. The victim goes on to say he filmed the sexual assault. He also extorted money from her. He clicked obscene photographs, videographed the assault. He blackmailed her for a year. And apart from that, he threatened to leak her photos. Now, based on these threats that he was continuously issuing, he forced an illicit sexual relation and then later also went on to extort money. He extorted 4 lakh rupees from the victim. This is what the victim has told the police. Another serious allegation is that he was attempting to kill the victim. These are the allegations leveled. He was physically abusing her as well. He thrashed her and abused her. He is rowdy and well connected. So here the victim is talking about his influence as well, that he is rowdy and he is well connected. This is the traumatizing ordeal. This is what the victim has told the police. Now, let's also break down the details of the influence that the victim is talking about. Now, these are netas of the Samajwadi Party who are facing serious charges of crime against women associated with the Samajwadi Party. We are breaking down the details of first what the victim has told the police. We'll also break down details of the kind of influence that the victim is talking about as far as this individual is concerned. Now, in the last 1 month itself, 3 men, these 3 men linked to the Samajwadi Party, Mohit Khan in Ayodhya, Nawab Singh Yadav in Kannauj, and now it's Virendra Pal in Mau, who's also a lawyer by profession, associated with the Samajwadi Party, are facing serious charges of crime against women. A man who was once the former president, we're talking about Virendra Pal, the former president of Mau Bar Association. We're also getting fresh details about this rape accused Samajwadi Party neta's antecedents.
Let's break it down, the details through the graphics here on the big screen. Remember, this neta, this individual is absconding. Rape accused Samajwadi Party neta Virendra Pal absconds. Teams have been formed. A manhunt has been launched. The Samajwadi Party neta reportedly is untraceable since 2nd of September. Apart from that, we're getting more details. Victim says Samajwadi Party neta last met her on the 16th of July and also on the 17th of July. FIR in the case was filed on September 7th, 2024, and he has been absconding since the 2nd of September. Let's talk about the influence that the victim has narrated in her complaint. Virendra Pal is close to Mukhtar Ansari's family. This is where the influence comes into play. He is former president of the Mau Bar Association. This individual's father, Daya Ram, is a senior Samajwadi Party neta. So the family is associated with the Samajwadi Party. Pal's father, Daya Ram Pal, was also a former BSP MLA. So first with BSP, then with Samajwadi Party. Rape accused Virendra Pal is a practicing lawyer. This is exactly the kind of influence that the victim was talking about when she said he is well connected, he is influential, and he is a rowdy individual. As the police teams tried tracing rape accused Samajwadi Party neta Virendra Pal, watch how the war of words is unfolding between the BJP and the Samajwadi Party. समाजवादी पार्टी को जैसे ही लोकसभा के चुनाव में कुछ आंशिक सफलता मिली है, ये समाजवादी पार्टी के भीतर के अराजक तत्व, आपराधिक तत्व ये खुल करके सामने आ गए हैं। इनका मनोबल फिर से ऊंचा हो गया। इन्हें लग रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में फिर इनकी सरकार आ सकती है, सत्ता का इनको संरक्षण मिल सकता है, इसलिए फिर से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो गए। भूल गए हैं कि उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। लगातार जिस तरह के अपराधों में समाजवादी पार्टी के लोगों का नाम निकल कर आ रहा है, ये बहुत चिंताजनक है। और अखिलेश यादव जी से आग्रह कर रहे हैं कि अपनी पार्टी के नेताओं को कंट्रोल करें, नियंत्रित करने का काम करें, और जिन लोगों ने अपराध कर दिया है उनसे कहें कि आत्मसमर्पण कर दें, वरना फिर पुलिस कार्रवाई करेगी तो अखिलेश यादव जी फिर छाती पीटेंगे, फिर अखिलेश यादव जी कहेंगे कि पुलिस ज्यादती कर रही है। मऊ में समाजवादी पार्टी के नेता और अखिलेश यादव के करीबी वीरेंद्र बहादुर पाल पर बलात्कार का मुकदमा कायम हुआ है, और जब से मुकदमा कायम हुआ है तब से वीरेंद्र बहादुर पाल फरार हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट कहना है कि जब से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी और उनका इकोसिस्टम बलात्कारियों, लुटेरों और अपराधियों के पक्ष में खुलेआम खड़ा हुआ है, तब से समाजवादी पार्टी के जो अपराधी बिलों में घुस गए थे उनका मन बढ़ा हुआ है। मध्य प्रदेश का वीडियो देखा था ना, रेप करते हुए, जहां से मुख्यमंत्री 4 बार जिस चौराहे से गुजरे थे, मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। बीजेपी का जो व्यक्ति रेप करे उसका वीडियो है, तब वो दोषी नहीं। और समाजवादी पार्टी के किसी कार्यकर्ता पे आरोप लगा दे कोई, तो समाजवादी पार्टी के चरित्र पे उंगलियां उठ जाती हैं। आशुतोष is joining us with more details. आशुतोष, ये राजनीतिक बयानबाजी तो चलती रहेगी, लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब समाजवादी पार्टी को भी ढूंढना चाहिए। 1 महीने के अंदर 3 लोग जिनका किसी न किसी अपराध के साथ कोई लिंक सामने आया है महिलाओं के खिलाफ, और अब तीसरा जो नाम है वो वीरेंद्र पाल का है, जो कि फिलहाल फरार बताया जा रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पे लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से एक के बाद एक जो 3 मामलों में समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, वो भी रेप जैसे गंभीर आरोप। सवाल इस बात का है कि जो पार्टी बेटियों की सुरक्षा की बात करती है, जब उसी पार्टी के किसी नेता पर रेप जैसे गंभीर आरोप लगते हैं तो समूची पार्टी उसके पीछे एक तरीके से बचाव में चट्टान की तरह खड़ी हो जाती है। जबकि सवाल इस बात का है कि बेटियों की सुरक्षा कौन करेगा। अगर मऊ की बात करते हैं तो मऊ में वीरेंद्र बहादुर पाल का जो सियासी रसूख है वो किसी से छुपा नहीं है। वीरेंद्र बहादुर पाल के जो पिता हैं दया राम पाल, बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया। इसके अलावा खुद वीरेंद्र पाल समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव रह चुके हैं, उनके भाई जो हैं उनका भी एक सियासी रसूख है। तो जिस तरीके से उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए उस महिला के साथ पहले मारपीट की, फिर उसके बाद उसके साथ रेप किया, और कहीं ना कहीं पूरे मामले को दबाने की लगातार कोशिश की गई। लगभग 15 दिनों तक महिला के ऊपर दबाव बनाया गया, लेकिन महिला नहीं मानी और उसने पिछले 6 तारीख को यानी 6 सितंबर को इस पूरे मामले को लेकर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई और उसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया है। सवाल इस बात का है कि वीरेंद्र बहादुर पाल या
फिर उनकी जो पार्टी जिस तरीके से रेप के आरोप से पूरे तरीके से इनकार कर रही है, तो ऐसे में चाहे बेहतर ये होता कि वो मीडिया के सवालों का जवाब देते, लड़की के आरोपों का जवाब देते। लेकिन हकीकत ये है कि टाइम्स नाउ की जब टीम उनके घर पे पहुंचती है तो परिवार का कोई मेंबर उनसे मीडिया से बातचीत करने के लिए आगे नहीं आता है और हमें ये बताया जाता है कि वो पिछले कुछ दिनों से फरार चल रहे हैं, यानी गायब चल रहे हैं। मीडिया के सवालों का जवाब दें न दें, लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में जब सवाल पूछे जाएंगे तो जवाब देना पड़ेगा। आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वी मूविंग